ગામડે બાપા ખેતી કરે તો ખેડૂતોનું આંદોલન, મહિલા માટેનું આંદોલન, આપણને એમ થાય કે અહીંયા જન્મા છે શું આંદોલન કરવા હાટું જ જન્મા, શું કઈ બીજું નહીં કામ હોય આપણી પાસે, નહીં આપણા કોઈ અધિકારો આવતા હોય, એવી પ્રથા બનાવી દીધી છે ભાજપ કોંગ્રેસ વાળાએ કે કઈ પણ વસ્તુ તમારે સરકારમાંથી જોતી હોય આંદોલન ન કરો તો કોઈ તમને કઈ આપે નહીં, એવી પ્રથા બનાવી છે। તો એમણે બનાવેલી પ્રથા છે કે ભાઈ આંદોલન આંદોલન, ખેતી, પાણી, વીજળી, રોડ, રસ્તા, બસ, સ્કૂલ, કોલેજ, જે કઈ જોતું હોય એનું આંદોલન કરવું અને આખી જિંદગી આંદોલનોની પાછળ ખર્ચી નાખવી, એના કરતા ચૂંટણી આવી છે, ઝાડુ ચલાવવાનું એક મહા આંદોલન આપણે બધા ઉભા થઈને કરીએ અને એક ઝાડુ ચલાવી દઈએ આખા ગુજરાતમાં, એક મહા આંદોલન પરિવર્તનનું કરીએ, બાકી બધા આંદોલનોનો અંત આવશે અને ગુજરાતની અંદર એક નવી દિશામાં આગળ વધવાની આપણને બધાને તક મળશે। સાથીઓ, માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ અને માનનીય ભગવંત માન સાહેબે આખા દેશની અંદર એક નવી આશા અને વિશ્વાસ જગાડ્યો છે કે સરકાર જો ઈમાનદાર હોય, સરકારની અંદર નીતિ હોય, નિયત સારી હોય તો સરકાર ધારે એવું સારું કામ કરી શકે છે। અને એનો દાખલો દિલ્હીની અંદરથી, પંજાબની અંદરથી આપવામાં આવ્યો। ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવામાં આવ્યો, સારામાં સારી સરકારી સ્કૂલો બનાવવામાં આવી, સારામાં સારા રોડ, રસ્તા, દવાખાનાની સુવિધાઓ આપવામાં આવી। આખા દેશે એવું જોયું કે એક સરકાર ઈમાનદારીથી કામ કરે તો જનતાને મોંઘવારીથી રાહત મળી શકે એમ છે। માટે આજના આ લાભ પાંચમના શુભ દિવસે આપણે સંકલ્પ લઈએ કે આવનારા 5 વર્ષ સુધી જો લાભ જોતો હોય તો આ લાભ પાંચમે ઝાડુ મારીને પરિવર્તન લાવવું પડશે। અને છેલ્લી વાત કે ચૂંટણીના છેલ્લા દિવસોમાં ભાજપના નેતાઓ આવે આગલી રાત્રે કાળા અંધારામાં, અને અંધારામાં કોણ આવે? યા તો ભૂત આવે યા તો ચોર આવે। ચૂંટણીની આગલી રાત્રે કાળા અંધારામાં ભાજપના માણસો ગામડે ગામડે પૈસા લઈને નીકળી જાય, બધાને પૈસા આપે। મારું એવું માનવું છે કે એ તો એક વખત આપશે ચૂંટણીની આગલી રાત્રે, કોઈને 100 કે 200 કે 500 કે બહુ મોટો આગેવાન હોય ગામનો તો 5000 એક વખત આપશે અને 5 વર્ષ સુધી લૂંટશે। આપણી પાસે આ વખતે વિકલ્પ છે કે એક વખત ઝાડુ દબાવો અને 5 વર્ષ સુધી આપણા પૈસા સરકાર બચાવશે, આપણને મફતમાં સારી વ્યવસ્થાઓ આપશે। એટલે બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। નવા વર્ષમાં નવા જૂની કરવાનો સંકલ્પ લઈને અહીંથી આપણે બધા નીકળીએ, આખા ભરૂચમાં, આખા નર્મદામાં, આખા દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પરિવર્તનનો સંદેશ ફેલાય એવી આપ સૌને શુભેચ્છાઓ। જય જય ગરવી ગુજરાત। ગોપાલભાઈ ઇટાલા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે આપણને જોમ અને જુસ્સો પૂરો પાડ્યો છે। હવે ડેડિયાપાડાના ઇતિહાસમાં એક મંચ પર ભવ્ય ચીફ મિનિસ્ટર બિરાજમાન છે, એ પણ આપણા માટે અહોભાગ્યની વાત છે। હું પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભગવંત માન સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે જેઓ પોતાની સ્પીચ આપશે। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डेडियापाड़ा इलाके की इनकलाबी जनता इतनी भारी संख्या में आपका घरों से बाहर निकलना, ये इस बात का संकेत है कि गुजरात ने मन बना लिया, इस बार झाड़ू बड़े जबरदस्त तरीके से चलने वाली है गुजरात में। मंच पर मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, किसी पार्टी से निकाले हुए या किसी पार्टी से इस्तीफा देकर निकले हुए आदमी नहीं है।
आम आदमी पार्टी वाले जितने भी हैं वो रामलीला ग्राउंड से, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है और आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आम घरों के। सभी हमारे गुजरात की टीम के मेंबर, मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक दो बातें करूंगा। हम यहां कोई जुमले सुनाने नहीं आए, क्योंकि हमें सुनाने नहीं आते। वो जुमले सुनाने वाले वो अभी अपनी फैक्ट्रियों में जुमले बना रहे हैं कि कौन कौन से जुमले चलेंगे इस बार, किस जुमले से ज्यादा जज्बात भड़केंगे, किस जुमले से ज्यादा नफरत फैलेगी, वो जुमले अभी तैयार कर रहे हैं। हम कोई आपको झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं आए, हम आपको कोई लालच देने नहीं आए। हम हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालने नहीं आए। आ गया वो पैसा 15 लाख है जी, आया नहीं? गोपाल भाई आप तो कह रहे थे आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहां भी नहीं आया भाई, पंजाब में भी नहीं पहुंचा। अजी उस 15 लाख 2-4 हजार रुपया खर्च के लिए रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। सबसे ज्यादा नुकसान मां और बहनों को हुआ, महिलाओं को हुआ है नोटबंदी का। महिलाओं को, माओं को, बहनों को एक अच्छी आदत होती है, आदत बहुत अच्छी है वो, कि वो अपने पति को बताए बिना कुछ पैसे अलग से रख लेती हैं कि कुछ इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। कोई बच्चे की फीस आ गई, कोई आधी रात को बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के यहां जाना हो, थोड़ा अलग से रख लेती हैं, अपने पति को नहीं बताती। अब रातों रात नोटबंदी हो गई, सुबह वो देखती रह गई, ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक। बताती हैं तो भी घर में झगड़ा होता है, पति कहता कहां से पैसा आया बता, चोरी करती है तू। नहीं बताती वो कागज बन जाएंगे, बैंक खुद जा नहीं सकती। मैंने ये बात पंजाब में एक सभा में बोल दी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा, मेरे पास माएं और बहनें आई, मेरी गाड़ी का शीशा डाउन करवाया, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बोली ये नोटबंदी वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है बेटा, मायके से बदलवा के लेके आई हैं। ये हालत है भाई साहब। क्या नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार बंद हो गया, आतंकवाद बंद हो गया? तो फायदा क्या हुआ? बस जो मन में आया कर दो, जो बोलते हैं वही कानून है, ऐसा थोड़ी चलता है। मैं जब छोटा था तब से सुन रहा हूं 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण सुबह 9 बजे आता है 15 अगस्त को, और बुलेट प्रूफ शीशे में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि सुरक्षा चाहिए लोगों को, खुद शीशे में खड़े होते हैं। और वही भाषण है अफसरों का लिखा हुआ, रटा रटाया। जब से होश संभाला तब से सुन रहा हूं, गरीबी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी अपने अपने घर जाओ। ये था 15 अगस्त। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश के वारिसों, मेरे देश को चलाने वालों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। कम से कम हमारी किस्मत नहीं बदल सकते जनता की, तो कम से कम भाषण तो बदल लो, भाषण तो कोई नया दे दो। भाषण भी वही चल रहा है, क्या जरूरत है बदलने की? खुद ब खुद बारी आ जाती है भाई। जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो गए, ये आगे, ये गए, वो आगे, 5-5 साल की बारियां बंधी हुई हैं। तो ये परिवर्तन जो है ये पक्का लाना है। ये 5-5 साल पर परिवर्तन नहीं, ये मॉडल पुराना हो गया। आम आदमी पार्टी वाले एक बार मौका मांगते हैं, उसके बाद लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। दिल्ली में देख लो,
दिल्ली में देख लो, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल साहब। और मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसमें इतनी हिम्मत हो कहने की। 2020 के चुनाव से 1.5-2 महीने पहले टीवी पर आए अरविंद केजरीवाल जी और कहा कि अगर मेरे 5 साल के, दिल्ली वालों को कहा कि दिल्ली वालों अगर मेरे 5 साल के काम आपको अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। यह कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। यह वही आदमी कह सकता है जिसने किए होंगे। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यहां क्या हो गया, 27 साल हो गए भाई साहब, नमस्कार आपको। 27 साल, हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, तुम तो बदलो कुछ ना कुछ। 27 साल हो गए, कांग्रेस से विश्वास उठ गया। कांग्रेस को वोट दोगे वो उधर ही चले जाते हैं बीजेपी में ही। तो अब आपके पास एक नया सूर्य उदय होने के लिए आया है। अब आपके पास आम आदमी पार्टी आई है, ईमानदार पारदर्शिता से काम करने वाली पार्टी आई है। अब एक मौका हमको नहीं, अब गुजरात की 6.5 करोड़ जनता एक मौका अपने आप को देगी, अपने आप को। तुम जीतोगे। पहले क्या होता था, चुनाव होता था, नेता जीत जाते थे, लोग हार जाते थे। नेता आते थे 1.5 महीना पहले चुनाव के, ऐसे हाथ जोड़ने हैं, बस फेविकोल ही लगा लेते हैं, बस दिन रात ऐसे ऐसे ऐसे। और 1.5 महीने के बाद 4.25 साल जनता ऐसे ऐसे ऐसे। भाई आप खुद मालिक बनो, खुद देश के मालिक बनो। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। 130 करोड़ लोगों का देश है ये। जो वोटर कार्ड आपके यहां है, आज शाम को घर जाओगे, वोटर कार्ड देखना, ध्यान से वोटर कार्ड देखना। उसमें फोटो तो आप ही की लगी हुई है, फोटो आप ही की है, लेकिन उसमें आप हजारों भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों देशभक्तों के खून की सुगंधी आपको दिखेगी, खून की सुगंधी। तो आप कहोगे भगवंत मान ये कैसी बात कर रहा है, हमारे वोटर कार्ड का शहीदों के खून की सुगंधी से क्या लेना देना। मैं बताता हूं भाई साहब, अंग्रेज जब आए, जब अंग्रेज राज कर रहे थे, शादियां तो तब भी होती थी, गिद्दे भंगड़े खुशियां तब भी मनाई जाती थी, लेकिन वो वोट नहीं डालने देते थे। हमारे शहीदों की लड़ाई यही थी कि हमें वोट डालने का अधिकार दो, हमारा देश छोड़कर अपने मुल्क जाओ, हम अपना नेता खुद चुनेंगे, हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। वो फांसी पे चढ़ा दिए गए और उसके बाद अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा और हमें वोटर कार्ड मिल गया। और वो वोटर कार्ड अगर छोटे से किसी लालच में आकर, या किसी रिश्तेदार के कहने पर, या कोई पैसे लेकर किसी को आप ऐसे पकड़ा देते हो, तो समझ लो आपने वोटर कार्ड नहीं बेचा, आपने शहीदों के खून का सस्ता सौदा कर लिया, सस्ता सौदा। ये इसीलिए अहंकारे हुए हैं कि लोगों का क्या है, वोटर कार्ड ले लेंगे उनसे, क्या बात करते हो, इसे कर लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, लालच दे देंगे। किसी लालच में मत आना। तो मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब में 7 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में हमने वो काम किए जो 70 साल में नहीं कर सके। ये 70 साल में हमने आते ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हेल्पलाइन जारी किया। लोग फोन करो, कोई पैसे मांगता वीडियो हमारे पास भेजो, बाकी काम सरकार का। 200 से ऊपर बड़े बड़े अधिकारी भी हैं उसमें सरकारी बाबू भी हैं, वो जेल के अंदर बैठे हैं जी, जो लोगों से पैसे मांगते थे। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, 5-5 लाख रुपए पूर्व विधायक आज से 20 साल पहले जीते थे, लेकिन पेंशन चल रही है, करोड़ों लोग रुपए का फायदा हुआ हमें। उसी पेंशन से हम बेरोजगारों को तनख्वाह देंगे, उनको नौकरी पे रखेंगे। हमने 20,000 नौकरियां दी, सरकारी नियुक्ति पत्र देकर उनको स्टेशन मिल गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगर नीयत साफ हो तो सब हो जाता है, लेकिन
ये नेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले तो करते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद सबसे पहला बयान आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, खाली को खजाना थोड़ी बोलोगे। ये खजाना सिर्फ जनता के लिए क्यों खाली हो जाता है, ये खजाना अपने बेटे बेटियों को चेयरमैनियां देते समय क्यों नहीं खाली होता, ये अपने स्विस बैंक में पैसे डालने के लिए खजाना खाली क्यों नहीं होता, ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदते समय ये खजाना खाली क्यों नहीं होता। नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ हो तो जनता खजाना भरती है। आप सब लोग टैक्स देते हो, कई आप में से सोच रहे होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हम टैक्स नहीं देते। मैं बताता हूं, जितना टैक्स तुम देते हो उतने बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देते। सबसे पहले सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू, माचिस खरीदने जाओगे उस पर टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, लाइटर की स्विच दबाई, टैक्स शुरू, गैस पे भी टैक्स है। उसके बाद चाय पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, उसमें दूध डाला, टैक्स। उसके बाद खाना बनाया, आजकल तो 18% परांठे पे भी टैक्स। उसके बाद मोबाइल फोन यूज किया कि मैं आ रहा हूं, टैक्स। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे। घर पे आए, सब्जियां लाए बाजार से, टैक्स। खाना खा के सोते समय आप सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। नहीं भाई साहब, गलतफहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। हम लोग तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, तो खजाना खाली कैसे हो जाता है। यह बात पूछने वाली है इनसे, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो दोस्तों, हम लोग आपके घर के खजाने की रक्षा करने के लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं आए। मैं चाहता पैसे, खूब पैसे कमा लेता। मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, आप लोग लाफ्टर चैलेंज वगैरह में देखा होगा आपने। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। इनकम टैक्स दफ्तर में तो बोलते हैं कि चपरासी भी हो तो वो भी खूब कमाता है। ये अपनी नौकरी छोड़कर आ गए। सब लोग, हम लोग किसी न किसी पेशे से आए हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, अपना अपना काम छोड़ के आए हैं। किसके लिए? देश के लिए। कि अगर देश ही नहीं रहेगा, कौन सी फिल्में, कौन से इनकम टैक्स, देश सबसे सर्वप्रिय है। देश बचाना है, देश बहुत उल्टी दिशा की तरफ इसको लेके जा। देश बहुत अच्छा है, धरती बहुत खूबसूरत है, पहाड़ हमारे पास, पानी स्वच्छ हमारे पास, नदियां हमारे पास, नहरें हमारे पास, दरिया हमारे पास, धरती के नीचे कोयला हमारे पास, मारूथल हमारे पास, हर किस्म का मौसम हमारे पास, लेकिन अच्छी नीयत के नेता नहीं है हमारे पास। यह हो गया। राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। राजनीति में अगर दिल के राजे बनकर रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। ये बातें करो ना, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो अभी झाड़ू आपके हाथ में है, और मुझे याद आ गया, ये मुझे कह रहे थे, बीजेपी वाला एक मिला था मुझे, कि हम लोग जी 2-3 रात पहले इलेक्शन से झंडियां लगा देते हैं लोगों के घरों के ऊपर, रातों रात खूब सारी झंडियां लगा देते हैं। अब झंडी जब लगे हो ना मान साहब, तो घर पे झंडी हो तो लोग भी समझ जाते हैं कि भैया इस बार तो हवा बीजेपी की है, चलो 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 इनको वोट डालते हैं। मैंने कहा लोगों को इतना भी मूर्ख मत समझो। आज युवा पीढ़ी है, उसके पास व्हाट्सएप है, उसके पास सिग्नल है, उसके पास इंस्टाग्राम है, उसके पास फेसबुक है, ट्विटर है। मैंने कहा आजकल लोग ऐसे झंडियों से वोट नहीं देते।
आजकल लोग उल्टा करते हैं, घर पे झंडी किसी और की, जेब पे बिल्ला किसी और का, स्कूटर पे झंडी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं और अंदर जाके वोट वाले दिन काम किसी और का कर देते हैं। यही है ना? तो ये भी तो यही करते हैं, नाम वोट लेते हैं कांग्रेस के नाम पर और बाद में चले जाते हैं बीजेपी में। वोट लेते हैं तुम्हारे विकास के नाम पर, करते अपने परिवार का विकास है। तो हम लोग आम आदमी पार्टी है, सच में आम आदमी है। हमारे पास 117 में से पंजाब में 92 सीटें आई, 117 में से 92, और 92 में से 10, सिर्फ 10 दूसरी बार चुने हुए हैं। 82 एमएलए पहली बार चुने हुए आम घरों के बेटे बेटियां हैं, और उन 82 में से मैं भी हूं। पहली बार एमएलए बना और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। ये सब जनता है, सब प्यार है। और इधर आप सच बता दो, आज कांग्रेस और बीजेपी में आपके बेटे बेटियों की जब आपकी बारी आ जाएगी कुछ बनने की, आ जाएगी जी, इनके मामे फूआ फुफ्फे वो ही नहीं खत्म होते, रिश्तेदार सब रिश्तेदारों से भरा हुआ है, पैसा जोड़ रहे हैं, पैसा पता नहीं कहां लेके जाएंगे, पता नहीं। तो यमराज जी से बात हो गई है कि आपके वाले ऊपर आ सकते हैं, साथ में लेके आ सकते हो, पता नहीं। तो ऐसा मत करो, पैसा जो है वो साथ नहीं जाता। गरीबों की दुआएं लो, वो सबसे बड़ा खजाना है। गरीब की दुआ जो है उसकी किसी करेंसी में दुनिया में कीमत नहीं है कोई, कि उसकी कीमत क्या होगी। तो हम पंजाब से आपको ये बोलने के लिए आए हैं कि तरक्की के लिए एक बटन आ गया है। मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने कैसे आंधी रोक दी, मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते दिल्ली और पंजाब में जो आंधी रोकी आपने भाजपा की। मैंने कहा जी इसमें तो बहुत सौखा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। कहते कैसे? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ को साफ करता है। मैंने कहा जी हमने कीचड़ से, अपने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं है हमारे पास ना। तो सफाई करो इस झाड़ू से। पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। और नफरत की बातें हम नहीं करते, हम तो समाज को जोड़ने की बातें करते हैं कि इकट्ठे रहिए, इकट्ठे तरक्की करो, देश तरक्की करे, तिरंगा झंडा ऊपर रहे हमारा, चाहे खेलों के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए, नंबर 1 कंट्री होना चाहिए। हम तो ये बातें करते हैं। अभी पार्लियामेंट में एक बहस चल रही थी जब मैं एमपी था, तो सभी कोई 1.5 घंटा बोल रहा है, कोई घंटा बोल रहा है। मैं अकेले ही एमपी था इसलिए टाइम कम मिलता था। मैंने स्पीकर साहब को कहा जी थोड़ा सा टाइम दो। कहते नहीं अब बहुत हो गया, अभी बिल पास करना है। मैंने कहा सर 30 सेकंड दे दो। 30 सेकंड में क्या बोलेगा तू? मैंने कहा जो मैं 30 सेकंड में बोल जाऊंगा ना, इनके 2-2 घंटे के भाषण में नहीं बोल सकते ये। कहते चलो बोलो क्या बोलना है, चलो बोलो। मैंने कहा जी लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। 2 नारे लगाऊंगा। भगत सिंह जी ये नारे तब लगाते थे आजादी के समय, तो अंग्रेज थर थर कांपते थे ये नारा सुनकर, इनकलाब जिंदाबाद का। तो अंग्रेज भी लूट के गए हमारे देश को, तो आजकल भी हमारे यहाँ उन्हीं के जो पद कदम चिन्हों पर चलने वाले हैं वो भी लूट रहे हैं देश को। तो नारा लगेगा तो वो भी कांपेंगे। 15-20 तो बीच में ही बैठे होंगे, उन्होंने वो भेजते हैं बीजेपी वाले, देख के और रैली में क्या है, कौन क्या बोला, उन्होंने फिर देने होती है रिपोर्ट शाम को। भाई साहब रिपोर्ट दे देना कि इधर तो बहुत ही कमाल है, बस हमारे वाले खुद आते हैं, इनके वाले लाने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। तो 2 नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, ताकि पता चल जाए, पहाड़ों की वादियों से आवाज गूंजे, दिल्ली तक पहुंचे, कि पता चल जाए कि गुजरात में परिवर्तन की लहर और परिवर्तन की आंधी चल रही है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब
इनकलाब, भारत माता की वंदे, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, तरक्की करें। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, आपका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। પંજાબના મુખ્યમંત્રી સાહેબે આપણને અવગત કરાવ્યા કે ગુજરાતની સરકાર જૂઠી અને ભ્રષ્ટાચારી સરકાર છે। એમણે આપણને એક અપીલ કરી છે। એ અપીલ એવી છે કે તમે લોભ પ્રલોભનમાં પડશો નહીં, નહીં તો પૈસા લઈને બીજા લોકોને, બીજી પાર્ટીઓને મત આપશો તો આ દેશના, જેમણે દેશની આઝાદીમાં જેમણે પ્રાણ ન્યોછાવર કર્યા છે એવા વીરોને નુકસાન થશે, એના વીરોને નુકસાન થશે એમ એમણે જણાવ્યું છે। હવે એના પછી આપણા યુવાનોના દિલની ધડકન અને દિલ્હીનું દિલ એવા માનનીય અને સન્માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ જે બોલે છે એવું કરે છે એવા અરવિંદ સાહેબ કેજરીવાલ સાહેબને વિનંતી કરીશ તેઓ પોતાની વાણી સંબોધશે। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय जोहर, जय जोहर। केम छो? मजा में? पीछे वाले भी इतने लोग आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हमारे से मिलने के लिए आए हैं, हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। भरूच के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। दोस्तों, पूरे गुजरात के अंदर एक जबरदस्त आंधी चल रही है। बदलाव, बदलाव, परिवर्तन, परिवर्तन। जहां जा रहे हैं हम सड़क पे उतरते हैं, सड़क पे उतर के किसी से पूछते हैं बदलाव आएगा इस बार, बदलाव आएगा इस बार। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़ा करके बताएं। 27 साल के बाद पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है, सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी एक खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात, उसका नाम आईबी है। सुना है आईबी का नाम? कुछ लोगों ने सुना होगा। केंद्र सरकार ने अपनी जासूसी एजेंसी भेजी है कि गुजरात में पता करके आओ माहौल क्या है, लोग किसको वोट दे रहे हैं। उस जासूसी एजेंसी के ऑफिसर 10-15 दिन पूरे गुजरात में घूमे, लोगों से बात की। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी की जासूसी एजेंसी की रिपोर्ट है। दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि किनारे पे है, अभी मार्जिन पे 90-92 सीट आएंगी। दोस्तों, एक बार जोर का धक्का मार दो, 90-92 नहीं 150 सीट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? दिल्ली वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
दिल्ली में जब चुनाव हुए 70 में से 67 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की 0 सीट आई थी, भाजपा की 3 सीट आई थी 70 में से दिल्ली में। पंजाब में चुनाव हुआ 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी की, भाजपा की 1 सीट आई थी पंजाब में। इस बार गुजरात में धमाका कर दो, 182 में से 150 सीट आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 15 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इन्होंने लूट लिया गुजरात को, खा गए सारा पैसा लूट के। कहते हैं गुजरात की सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? अभी भगवंत मान साहब ने आपको बताया, आप हर चीज पे इतना टैक्स देते हो, माचिस पे टैक्स देते हो, चाय पत्ती पे टैक्स देते हो, दूध पे टैक्स देते हो, गैस पे टैक्स देते हो, रोटी पे टैक्स देते हो, चावल पे टैक्स देते हो, दाल पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। अरबों खरबों रुपए इनके पास हैं। कहते हैं घाटे में चल रही है गुजरात की सरकार। कहां गया सारा पैसा? आपके गांव में कोई सड़क बनी? आपके गांव में पिछले 30 साल में कोई अस्पताल बना? आपके लिए दवाई का इंतजाम किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया। कोई मेरे को बता रहा था, एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास अब 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले छोड़ेंगे नहीं किसी को, गुजरात के 27 साल का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपका पैसा वापस दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? एक एक पैसा वापस लेंगे, एक एक पैसा वापस लेंगे। गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। अब गुजरात का एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा, आपके परिवार के ऊपर खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री पैसा नहीं खाएगा, हमारा कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा भी चोरी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भगवंत मान साहब ने पंजाब में कमाल करके दिखा दिया। भगवंत मान साहब की सरकार बनी, इनको पता चला इनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है, सेहत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गड़बड़ कर रहा है। अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने पता कराया, इनको पता चला हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता है क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी इतना ईमानदार मुख्यमंत्री देखा है? कभी इतनी ईमानदार पार्टी देखी है? कभी इतनी ईमानदार सरकार देखी है? यह तो सतयुग के जमाने में, भगवान श्री राम के जमाने में होता था कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दे। कलयुग में तो आज तक मैंने नहीं सुना। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। हमारा बेटा भी कल चोरी करेगा, जेल जाएगा। मेरा भाई भी कल चोरी करेगा, जेल जाएगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, पैसे मत देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते काम कराने के लिए। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, पटवारी के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में कोई काम कराना हो, पैसे देने पड़ते हैं। 15 दिसंबर के बाद आपको अपना काम कराने के लिए कोई पैसे नहीं देने, सारा काम बिना पैसे के होगा। दिल्ली में कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती।
पंजाब में कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, बिना रिश्वत के काम होता है। ऐसा इंतजाम करेंगे, आपको अपना सरकारी काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना सरकारी दफ्तर से, एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने कर दी व्यवस्था, दिल्ली के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, सरकारी दफ्तरों पे ताला, फोन करो सरकारी अफसर आपके घर आता है, आपके घर आके काम करके जाता है। गुजरात में भी लागू करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जब से हम आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है, मैं गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिला है। सब लोग मुझे कहते हैं अरविंद भाई, भाई हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा छोटा भाई है। सबने मुझे अपना भाई बना लिया है। बुजुर्ग माताएं मिलती हैं, कहती हैं बेटा बेटा बेटा, सबने बेटा बना लिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, परिवार का मेंबर हूं? कितने लोग मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, आपका यह आभार मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन जैसे ही सरकार एक एक वादा जो मैं करके जा रहा हूं, एक एक गारंटी मैं पूरी करूंगा। सरकार बनने के बाद आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके आपकी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। हमें तुम्हारे चिंता करवानी जरूर नहीं। તમારો ભાઈ आवे गए छे। सबसे पहले मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है लोग, हैं कि नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, आमदनी बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, परिवार पालना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। सबसे पहले महंगाई से आप लोगों को मैं राहत दिलाऊंगा, आपके परिवार को। 1 मार्च से, नोट कर लेना, 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल मैं भरा करूंगा, आपका बिजली का बिल देने की आपको जरूरत नहीं है। दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। 1 मार्च के बाद आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना आता है बिजली का बिल? किसी का 2000, किसी का 2500, किसी का 3000। मोटे मोटे तौर पे 3000 रुपए महीने की बचत होगी, होगी कि नहीं होगी? 3000 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। उसके बाद अपने घर में, आपके घर में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी फीस देते हो आप, उनकी स्कूल की ड्रेस खरीदते हो, कॉपी किताब खरीदते हो। मोटे मोटे तौर पे 3000 रुपए एक बच्चे पे महीने में खर्चा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? और अगर 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीना खर्चा आ जाता है। अब आपको फीस देने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके बच्चों की फीस देगा। दिल्ली में मैंने शानदार नए स्कूल बना दिए, बहुत सारे स्कूल बनाए हमने, शानदार स्कूल। उन स्कूलों में सारी शिक्षा फ्री है। अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक ही डेस्क पे आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाला का बच्चे एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। अब हमारे रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मैं आपके बच्चों को भी डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को आईएएस अफसर बनाऊंगा। मैं आपके बच्चों को मैं अच्छा भविष्य दूंगा और आपके बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी, 0 फीस। आपकी सारी फीस भरने की जिम्मेदारी आपके भाई की होगी। आपके परिवार के जितने बच्चे, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी थी मेरी। तो 10,000 रुपए महीना बच्चों की शिक्षा का बचेगा, 3,000 रुपए महीना बिजली का बचेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार होगा, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा,
उसके सारा इलाज आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा, आपका बेटा उसका खर्चा उठाएगा। सारी दवाइयां मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारा टेस्ट मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त। दिल्ली में हमने खूब सारे नए अस्पताल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, प्राइवेट से भी अच्छे अस्पताल। उसमें मैंने सारे दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, गुजरात में 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मैंने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर देंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी है। गुजरात में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं। दिल्ली में भी हमने हर गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। गुजरात में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, खूब सारे नए अच्छे अच्छे अस्पताल बनाएंगे और आपका सारा इलाज मुफ्त करेंगे। महीने में हर परिवार में 5-6 हजार रुपए तो दवाइयों में खर्च हो ही जाते हैं, और अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कई बार 10-10 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो महीने में 5,000 रुपए खर्च करते हो वो आपकी बचत हो जाएगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके 10 लाख 20 लाख रुपए भी खर्चा होगा, कोई बड़ी बीमारी हो गई, वो भी सारा आपका भाई देगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ऊपर की जितनी बहनें हैं, 18 साल से ऊपर जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, हर एक के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाला करेंगे। तो अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो हर एक को 1,000 अलग 3,000 रुपए महीना मिलेगा। अलग से 3,000 रुपए महीना, 1,000 उसका, 1,000 उसका, 1,000 उसका। और अगर अपने घर में कोई बेरोजगार है, उसको रोजगार का भी इंतजाम मैं करके दूंगा। दिल्ली में मैंने पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। पंजाब में भगवंत मान साहब ने पिछले 6 महीने में 20,000 नई सरकारी नौकरी निकाली है। हमें रोजगार देना आता है। मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर किसी परिवार में 2 बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपए हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3,000 रुपए बिजली के बच गए, 10,000 रुपए महीना बच्चों की स्कूल की फीस बच गई, 5,000 रुपए महीना दवाइयों का बच गया, 3,000 रुपए महीना महिलाओं को मिलेगा, 6,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, 27,000 रुपए का फायदा हो गया महीने का। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हर परिवार को महीने में 27,000 रुपए का फायदा होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी गुजरात को 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए। सुना आपने? देखा था टीवी में, अखबार में पढ़ा था, 30,000 करोड़ का पैकेज। सारे मंत्री बड़े खुश हो गए, अब तो ऐश हो गई, 30,000 करोड़ का पैकेज आ गया, मंत्रियों की चांदी हो गई। ठेकेदार खुश हो गए, सारे ठेकेदार, सारे मंत्री नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, 30,000 करोड़ आ गया। आपको क्या मिला? ठन ठन गोपाल। जनता को क्या मिला? जनता को तो कुछ नहीं मिला। 30,000 करोड़ का पैकेज, मंत्री भी खुश, ठेकेदार भी खुश, जनता बेचारी देख रही है ये क्या हो गया। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमारी सरकार बनेगी, हर महीने आपके परिवार को 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। एक और बात है, अगली साल अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो रहा है। किस किस को देखने जाना है अयोध्या? अयोध्या जावू छे? भगवान राम ना दर्शन करवा छे? सबको करना है भगवान, सबकी इच्छा है। हर एक हिंदू की इच्छा होती है कि मैं भगवान राम के, रामलल्ला जी के दर्शन करके आऊं, लेकिन आना जाना, खर्चा, रहना,
और पूरे परिवार को लेके जाओ तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। दिल्ली में मैंने इंतजाम कर दिया, स्पेशल ट्रेन चलवाई है। दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन जाती है अयोध्या, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा। दिल्ली के लोग मेरे को श्रवण कुमार बोलते हैं, कहते हैं केजरीवाल हमारा श्रवण कुमार है। गुजरात के लोग भी मुझे श्रवण कुमार बोलेंगे। आपका भी बेटा बन के, आपका भाई बन के आपको अयोध्या जी के दर्शन करवा के लेके आऊंगा। पिछले 27 साल में भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अन्याय आदिवासी समाज के साथ किया। आपकी पंचायतों को कोई पावर नहीं, कोई फंड नहीं, ग्राम सभा की कोई पावर नहीं, पैसा कानून को लागू नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले पैसा कानून लागू करेंगे, ग्राम सभाओं को आपका अधिकार दिया जाएगा, 5th शेड्यूल को लागू किया जाएगा और ग्राम सभाओं की मर्जी के बिना आपकी कोई जमीन नहीं ली जाएगी। ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई आपके पदार्थ, खनिज पदार्थ नहीं लिए जाएंगे। जो ग्राम सभा कहेगी, जो गांव के लोग कहेंगे, वो सरकार के ऊपर बाध्य होगा, सरकार को उसको मानना पड़ेगा। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल सब फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री में बांटता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई नागरिक पैदा हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके इलाज फ्री होना चाहिए, उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं कहता हूं मैं गुजरात के लोगों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है स्कूल बनवा दिया तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं कहता हूं मैं बिजली मुफ्त करूंगा, कहते नहीं नहीं बिजली मुफ्त नहीं होगी। इनको डर लगता है बिजली मुफ्त हो गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं गुजरात के लोगों के लिए अस्पताल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है अस्पताल बन गए तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा, इनको पैसा लूटना है। केजरीवाल सारा पैसा अपने लोगों पे लुटाएगा। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों से बच के रहना। ये कांग्रेस को तो बिल्कुल वोट नहीं देना। आप लोगों ने, आदिवासी समाज ने कई बार कांग्रेस के लोगों को जिताया है, कई बार कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला? जीतने के बाद आपके वोट की बोली लगा के और बीजेपी में चले जाते हैं। इस बार बच के रहना। कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, सारे वोट आम आदमी पार्टी को आने चाहिए। और ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? इल्लू इल्लू इल्लू, आई लव यू आई लव यू। दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस इल्लू इल्लू का रिश्ता है दोनों में। रात को 12 बजे सीक्रेट मीटिंग हो रही है आजकल इनकी, दोनों की मीटिंग होती है, कांग्रेस की बीजेपी की, कि कल केजरीवाल को ये गाली देंगे, कल केजरीवाल को ये गाली देंगे। दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है। आपका भाई राक्षस है? कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल आतंकवादी है। कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है? केजरीवाल खालिस्तानी है। दोनों मिलके गालियां देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भाई को ये गालियां दे रहे हैं, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करोगे इसको? इस बार जब वोट डालने जाओ, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, बता देना राक्षस कौन है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि हमारे जो नोट हैं, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, उनकी फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ मैंने गलत कहा क्या? फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी, हाथ खड़े करके बताओ। होनी चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने से क्या तरक्की होगी?
देखो, तरक्की करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करेंगे, पूरा देश कड़ी मेहनत करेगा, नीतियां ठीक बनाएंगे, लेकिन केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता। अगर मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई तरक्की नहीं होती। मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होगी तो आप जब मेहनत करोगे तो उस मेहनत की तरक्की मिलेगी, उस मेहनत का फल मिलेगा, पूरे देश को मेहनत का फल मिलेगा। मेरा किसान जब मेहनत करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, जब उद्योगपति मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जब व्यापारी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। ये लोग क्यों इसकी खिलाफत कर रहे हैं? मेरे को इतनी गालियां, दोनों मिलके, बीजेपी भी कांग्रेस भी, दोनों मिलके गालियां दे रहे। बताओ मैंने क्या गलत बोला? अभी मैं आ रहा था, रास्ते में 10-15 लड़के मिले, जोर जोर से चिल्ला रहे थे मेरे को देख के, मोदी मोदी, मुझे काले झंडे दिखाए इन लोगों ने। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं उनको भी अपना भाई मानता हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कल जब हमारी सरकार बनेगी तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं स्कूल बनवाऊंगा। जब कल तुम्हारे जितने लोग मेरे को काले झंडे दिखाते हैं, जितने लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, कल जब हमारी सरकार बनेगी उनके घर में जब कोई बीमार होगा उसका इलाज भी केजरीवाल करवाएगा, उसकी दवाइयों का पैसा भी केजरीवाल देगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आप किसी को वोट करो, चाहे बीजेपी को वोट करो, चाहे कांग्रेस को वोट करो, सबकी जिम्मेदारी, आपके सबके परिवारों की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। मैं आपका दिल जीतूंगा और मुझे पक्का विश्वास है एक दिन 6.5 करोड़ गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बनेंगे। अब मुझे आप लोगों से 2 वादे चाहिए। आपको जितने मैंने वादे किए वो सारे वादे मैं पूरे करूंगा, आपकी बिजली भी फ्री करूंगा आपके, लेकिन 2 वादे आपसे चाहिए। एक तो जब यहां से निकल के जाओ, बाहर निकलते ही अपना फोन निकालना, फोन में जितने व्हाट्सएप पे चले जाना, जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबको मैसेज भेजना कि इस बार मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, इस बार बदलाव चाहिए। आप भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। सबको मैसेज भेजना कि मैं भी वोट दे रहा हूं, आप भी वोट दो। करोगे सब लोग? कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करो। देखो, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मैं भी गरीब आदमी हूं, ये भगवंत मान भी फक्कड़ आदमी है, गोपाल इटालिया भी फक्कड़ आदमी है। हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, हम घूम रहे हैं अपनी, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए। तो एक तो सारे जने अपने अपना व्हाट्सएप कर देना अभी आधे घंटे में। दूसरा, अपने अपने गांव में जाओगे, अपनी अपनी गली में जाओगे, अपने अपने मोहल्ले में जाओगे, एक एक घर में जाके आपको 100 वोट तैयार करने हैं, एक एक आदमी को 100 वोट तैयार करने हैं। मंजूर है? तो दोस्तों, आपने 27 साल इनको दिए, मैं आपसे केवल एक मौका मांगने के लिए आया हूं। एक मौका दे दो। अगर मैं अच्छा काम ना करूं, अगर मैं अपने वादे पूरे ना करूं, अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक मौका हमें दे दो, एक मौके से ज्यादा नहीं मांगूंगा, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा अगर मैंने काम नहीं किया तो। भारत माता की।